Hey guys, welcome back to our channel. So as we discussed, okay, yesterday, first of all, I would like all of you to go and watch my yesterday's video. It's hardly 2 minutes long. So yesterday I told you that it is possible that today's triangulars might find the market very difficult. In the next 1 or 2 days, I told you. Secondly, we had a bullish bias. Now today, Bank Nifty was up by more than 100 points. And probably intraday it might have given some difficulty to people who sell triangles. So let's see what we can gauge from the markets for tomorrow. Now first thing, okay, according to price action, weekly candle, we had a strong pin bar candle. This signifies bullishness, which means the current week most probably we'll get a bullish move. Okay, that's the first thing we infer from the weekly chart. Daily chart से हमको क्या समझ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस था इसको कितने बार टेस्ट कर चुका है मार्केट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करके क्लोज कर रहा है. तो डेली चार्ट से हमको समझ में आता है कि मार्केट बुलिश ही है. ओके, तो बुलिश ट्रेड्स प्लान करने चाहिए. फिर क्या समझता है डेली चार्ट से, मुझे समझता है कि यहाँ पे ना एक गैप हुआ था इतना दिन, ये 17 जनवरी वाले दिन पे, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है गैप फिल करने को. तो इवन इफ मार्केट गोज देयर, which is a very high probability it goes there quickly, so that will be because it has to fill the gap. So I told you the weekly logic, I told you the daily logic. Okay, now we'll see like what we can try to gauge for tomorrow. Now first thing, from the daily chart, what candle do we see today? We see a bullish candle, but उसमें थोड़ा सा वीक है ऊपर की तरफ. ओके, सो आइडियली हमको ऐसा कैंडल पसंद आता है, मतलब सी दिस वन, दिस इज अ गुड कैंडल. सो इसमें थोड़ा वीक है, तो अभी कल के लिए क्या एनालिसिस करेंगे हम इसके ऊपर, लेट्स ट्राई टू सी. सबसे पहले तो वील टॉक अबाउट बेरिशनेस. का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है होने का, बट इफ मार्केट टर्न्स बेरिश टुमारो, लेट्स सी कहाँ पे वी कैन टेक बेरिश ट्रेड्स. तो ये रेजिस्टेंस जो था, इफ मार्केट ट्राइज टू गो बिलो दैट, नाउ दिस रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 47,200. 47,200 के नीचे अगर हम जाते हैं, देन वील ट्राई टू प्ले बेरिश इंट्राडे टुमारो. ओके, बिकॉज दिस वाज अ रेजिस्टेंस, उसको अगर ब्रेक कर देगा मार्केट तो इंट्राडे के लिए बेरिश रह सकता है कल. बुलिशनेस के लिए हमारा प्लान है कि करंट डे का हाई जब कटेगा ना, देन बिकॉज दिस गैप हैज टू फिल मार्केट का, लाइक वी कैन एक्सपेक्ट अनदर अप मूव देन. ओके, हो सकता है इसी वीक में भी फिल कर दे हमको गैप. नाउ यू नो इफ निकिता वुड बी डूइंग दिस वीडियो, व्हाट शी वुड डू, शी वुड ड्रॉ दिस लाइक पैटर्न, this pole and flag pattern. Okay, it has given a breakout here. So market, when it breaks today's high with a strong candle, it can continue its up move tomorrow. So if it does that, we'll try to play bullish for tomorrow. I think अगर कल गैप अप होता है तो आई थिंक पुट्स जो ओवरनाइट के रह गए काफी अच्छे डीके होने चाहिए. वो लेट्स सी अगर वो होते हैं कि नहीं, आई थिंक होने चाहिए. बट निफ्टी में वीकली एनालिसिस पे व्हाट वी हैड प्लान्ड, वी प्लान्ड दैट यू नो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल. ओके, नाउ व्हेन दिस हाई ब्रेक्स, वील ट्राई टू कंटिन्यू टू प्ले बुलिश. Now we have to wait for that high to break. Especially अगर daily candle close मिल जाता है हमको ये high के ऊपर, then we'll speak about even more bullishness. Now in my yesterday's video, what I had told you, Nifty has broken out here. Okay, so even if it comes down, you have to play bullish only because this is the all-time high retest. Okay, so that was pretty simple आज. अगर मैं 15 मिनट में लेके जाऊँ आपको, see this is the level we had marked from the daily chart, and that's from where market has gone up today. So this is a simple concept, all time high retest. All time high जब भी breakout होता है ना, then उसका retest करने market comes. And this is not some alpha of mine or something. Lot of traders trade breakouts, and lot of traders who don't like to trade breakouts, they buy the market when it comes to retest the all time high. A lot of big traders also use these things. So in Nifty, what we can do, since the all time high is 22,463, we can try to buy Nifty if it breaks out of the all time high with a strong candle. सिर्फ आज का हाई अगर तोड़ा तो ज्यादा कुछ अग्रेसिवली लॉन्ग मत जाना निफ्टी में, because we need the all time high breakout as well. दोनों अगर हो गए तो जाना. अगर मार्केट opens flat, okay, somewhere around this range, so you can wait for this range to break. तब तक के लिए you can try to trade non-directionally in this range. Okay, Nifty. Yeah, so if Nifty opens flat somewhere in this range, okay, market you can try to trade this range with a non-directional trade. Let's see if the market gaps up, okay, how the premiums react, because all of this depends on how the premiums behave as well. कई बार क्या होता है, गैप अप पे पुट्स डोंट डिके, कई बार दे डिके अ लॉट, सो लाइक ऑल द टाइम द एनालिसिस विल बी डिफरेंट, एंड आई कुड बी रॉन्ग, यू नो, इट कुड पॉसिबल गैप डाउन, ओके, आई एम रॉन्ग आल्सो, बट लेट्स सी. लास्टली, ओके, आई जस्ट वांट टू ऐड, फिन निफ्टी का मैंने बताया था, if it breaks yesterday's high in the daily chart, I'll show you. See, fin nifty, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जोन के पास है, राइट? तो फिन निफ्टी whenever it breaks it, इसने भी तो गैप डाउन किया था ना इस दिन का, राइट? तो फिन निफ्टी ऑल्सो हैज टू रन अप क्विकली. तो आज के लास्ट के 2-3 दिन का हाई अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो एक अच्छी खासी कैंडल बन सकती है. चलो एक समरी दे देता हूँ मैं आप सबको ये एनालिसिस की.
बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने बात की थी वीकेंड पे, मैंने बताया था कि ये बुलिश कैंडल है, राइट। तो बुलिश कैंडल के बाद नेक्स्ट वीक वी ट्राई टू प्लान बुलिश ट्रेड्स ओनली। तो करंट वीक वैसे ही जा रहा है। और बैंक निफ्टी डेली चार्ट पर मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो जब करंट डे का हाई निकलेगा, इट हैज टू गो एंड फिल दिस गैप। ये गैप ज्यादा दूर नहीं है, तो ये फटाफट ये गैप को जाके फिल करना चाहिए। 15 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी में अगर यही रेंज में, आज के रेंज में मार्केट रहा तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हैं। बट जब भी रेंज का ब्रेकआउट हो ना, फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसे बायस के साथ खेलना चाहिए मेरे हिसाब से कल के लिए। और निफ्टी में हमको चाहिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी अपना लाइक ऑल टाइम हाई निकाल दे, हमको चाहिए वो। डेली चार्ट पर वी आर सीइंग कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, 3 दिन से ले रहा है रेजिस्टेंस यहाँ पे। सो व्हाट वी वांट अ क्लोजिंग अबव दिस रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज। whenever we get that we'll plan for a further bullish move in nifty। मैंने बोला था ना कि आपको कि वीकली एनालिसिस में कि आई थिंक 22,800 के आसपास जाना चाहिए निफ्टी। सो दिस लाइक वील प्लान फॉर दैट। लास्ट के जो 3-4 दिन का जो हाई है ना, वो अगर निकलता है देन वील टेक कंटिन्यू ट्रेड्स देयर एज वेल। और निफ्टी में आज मैंने बताया था कि निफ्टी अगर नीचे भी आता है तो ये पिछला ऑल टाइम हाई है उसका, तो उसको रीटेस्ट करने आएगा, फिर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। तो निफ्टी अगर आपने ये जोन को निकाल लेता है विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन यू कैन प्ले बुलिश इन निफ्टी एज वेल। ओके, सो लास्टली फिन निफ्टी में मैंने बताया कि फिन निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव आ सकता है ऊपर की तरफ इन द कमिंग फ्यू डेज। सो कीप एन आई आउट ऑफ फिन निफ्टी एज वेल। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लेट मी नो इफ आई कुड ऐड एनीथिंग टू एनालिसिस। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज में डाउट्स है तो ट्राई टू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I would love to help you out. And thank you so much for watching this video. And I'll meet all of you very soon tomorrow. And don't forget to hit the like button. So I'll see you tomorrow. Take care.